Good evening, everybody. Evening. Good evening, everybody. Good evening, sir. This is our fourth Zoom meeting for which we have gathered today. Previously, 3 meetings were rather study meets, but this is more important. This is regarding our health problem. You see, if health is there, everything is there. If health goes, one goes. For this occasion, our secretary, Bharat Tyagi ji, has arranged a meeting with a highly qualified, dignified Dr. Pramod Jindal ji from Max. His degrees are such that I cannot even pronounce them. And he has awarded so many times. For this, I also request our learned, soft-spoken, kind-hearted CA Dr. Ashish Agarwal ji to please let the members know about the Dr. Sir. Over to Dr. CA Ashish ji. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, President Saab, for providing this wonderful opportunity to me to introduce to all of you Dr. Pramod Jindal ji. Dr. Pramod Jindal ji is the Director of Thoracic and Robotic Thoracic Surgery, Max Super Speciality Hospital, Patparganj and Vaishali. He did his MBBS from the Government Medical College, Nagpur. Then he did his post-graduation, that is DNB, means Diplomate of National Board of General Surgery from Sri Gangaram Hospital, New Delhi. And then he did his clinical fellowship from Thoracic Surgery and Thoracic Oncosurgery Department of National Cancer Institute and National University Hospital, Singapore. As far as his experience is concerned, he is also a senior consultant surgeon at Sri Gangaram Hospital, New Delhi, since the year 2007 till date. As far as different trainings are concerned, from the year 2010 onwards, in the year 2010, he took the training of thoracic surgeon and the video-assisted thoracoscopic surgery training from the University of Colorado, Denver, USA. Then in the year 2011, he got the foregut surgery training from the University of South California, Los Angeles, USA. And again in 2011, he got the training of lung transplantation from Toronto General Hospital, Toronto, Canada. And then in the year 2012, he took the training of tracheal surgery from the Massachusetts General Hospital, Boston, USA. And in the same year, 2012, he took the training of robotic surgery from Harvard Medical School, Boston, USA. And in the year 2014 and 15, he had undergone the training of thoracic cancer surgery from the National University Hospital and National Cancer Institute of Singapore. Now, certain awards and accomplishments. Apart from the association with Max Hospital, Dr. Pramod Jindal ji is also a consultant thoracic surgeon at the Northern Railway Hospital, New Delhi. And in the year 1992, he had been awarded the National Merit Certificate for AISSCE. I suppose it is All India Senior School Certificate Examination. It is a great achievement, sir. And again, in the year 1992, he got the National Merit Certificate for Biology in 1992 from AISSCE, that is All India Senior School Certificate Examination. And recently, in the year 2017, and again in 2019, he was being invited as a trainer
at the National Conference of the Society of Laparoscopic and Endoscopic Surgery Conference. And again, in this year 2019, he was invited as the trainer for the video assisted thoracoscopic surgery at the National Conference of Pulmonary Diseases. Now, certain membership. Dr. Jindal is the proud member of Association of Asian Society of Cardiothoracic and Vascular Surgeons, Philippines. He is also the member of European Society of Thoracic Surgery, United Kingdom. He is also the member of Society of Thoracic Surgeons, Chicago, USA. He is also the member of Southeast Asia Thoracic Society, Singapore. And he is also the member of Indian Society of Thoracic Surgeons and Trust, Chicago, USA. And he is one of the oldest members of Association of Surgeons of India, New Delhi. So this is the brief biodata, and also one of the very important things that Dr. Pramod Jindalji is also available for all of us at Max Super Speciality Hospital, Patparganj, and at Max Super Speciality Hospital, Vaishali. So with this brief introduction, I welcome Dr. Pramod Jindalji to the Kranti Dhara Meerut, and especially amongst the members of the Income Tax Bar Association. We all, the members, the advocates, and the chartered accountants, welcome you. Thank you very much, sir. You're welcome, sir. Over to Secretary Shri Bharat Tyagi. Without taking much of the time, I would request our guest speaker, Dr. Pramod Jindalji, to enlighten us on the topic. नमस्कार and thank you, sir. And आप ये असल में मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए कहे जा रहे हैं, खासकर इतनी लर्नेड गैदरिंग है. सो शुरुआत करते हैं. कोशिश करता हूँ हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण से ही सब कुछ करें. सो द टॉपिक जो आज हमने चूज किया था वो रिकवरी ऑफ लंग्स पोस्ट कोविड पीरियड और पैंडेमिक में है. थोड़ा सा मैं वैक्सीनेशन पे भी इसमें बीच लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो वैक्सीनेशन के बारे में भी जो मिथ्स और वो हैं उनको भी बताना चाहूँगा. और प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नहीं पता होंगी, लेकिन उसके कारण क्या है, क्यों हम इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. और अगर किसी वजह से कोई चीज कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू द जस्टिस विद दैट. शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमारे जितने भी साथी हमारे साथ के, हमारे बाकी पैरामेडिक स्टाफ, हमारे पुलिस, हमारे जर्नलिस्ट, जिन भाइयों ने इस गहन विद्या में हम लोग का साथ दिया है एज ए पर्सन, उनको सबको हम सलाम करते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें इस महामारी में अपना काम करते करते अपने जीवन भी न्यौछावर किया है. हमारे अपने कलीग्स, मेरे अपने 2 बैचमेट्स, मेरे अपने 3 हॉस्पिटल के कलीग्स ने भी अपनी इसमें एक तरीके से बलिदान ही दिया है, तो उनको भी नमन करता हूँ. आगे जाते हैं कि अब ये आ क्या रहा है. ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि अब हमें पैंडेमिक के बाद जो हमें लंग्स आ रहे हैं, जो लोग बच रहे हैं, उनके लंग्स इतने खराब होके आ रहे हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हमें इस चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं कि उनको कोई सडन प्रॉब्लम ना हो जाए, सडन सांस रुक ना जाए. तो ये सारे लंग्स हमारे पास आ रहे हैं अभी. लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारे लंग्स हमारे ठीक हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, टाइम लग सकता है लेकिन ठीक हो जाएंगे. अगर ये आप एक्सरे सीटी शायद ना समझ पाए, लेकिन इससे एक चीज जो आप देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं वो जो ब्लैक रहते हैं वो उनमें सफेदी जैसा आ जाता है. और वो सफेदी को क्लियर आउट होने में हमें जो लग रहा है 6 से 8 महीने तक लग रहे हैं.
तो इसके लिए हम क्या करें? मैं वैक्सीनेशन लास्ट में आऊंगा। सिंपल से शुरू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो हमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है वो है स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। बहुत सारे साथी हैं जिनको स्मोक बिकॉज ऑफ अपने कलीग्स के कारण आ रहा था। मेरे हिसाब से ये पैंडेमिक ने एक चीज तो बड़ी क्लियर कर दी है, और वो ये है कि जिस ऑर्गन को हमने कभी ध्यान में इतना नहीं दिया, हम हार्ट के बारे में सोचते थे, हम लीवर के बारे में सोचते थे, किडनी के बारे में सोचते थे, लंग्स के बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं। और सबसे बड़ा दुश्मन जो स्मोक लंग्स का है, दैट इज स्मोकिंग। सो प्लीज हमें और अपने आसपास के लोगों को जो सबसे पहला काम कराना है, स्मोकिंग को बंद कराना है। एंड यकीन मानिए, द मोमेंट यू स्टॉप स्मोकिंग, द मोमेंट, द डे स्मोकिंग इज स्टॉप्ड, the chances of lung cancer decreases from the same day. Also, prolonged problems because of smoking are जो हमारे अस्थमा होता है, इम्फाइजमा होता है, हमें COPDs हो जाते हैं, जो लोग इनहेलर लेते हैं उन सब के लिए बहुत जरूरी है। खासकर जिनको कोविड हुआ था, चाहे असिम्टोमेटिक थे चाहे माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, हमें जो देखने में आ रहा है, हर एक के लंग में देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबके लंग्स में हमें दिख रही है। हमने असिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स के भी CT स्कैन किए और उनमें भी हमें देखने को आया कि 10 to 15% उनके भी सेचुरेशन लेवल, मतलब जो लंग का फंक्शनैलिटी था, वो कम हुआ है। सो हम इसको फर्दर खराब ना करें और किसी भी तरह से स्मोक को हम अपने जीवन में ना आने दे। तो फर्स्ट इज दिस। सेकंड वाज एक्सरसाइज। कुछ हमारे साथ के लोग हैं जो योगा करते थे, प्राणायाम करते थे। मैं खुद इतना उसमें नहीं था योगा और प्राणायाम में, लेकिन द थिंग विच आई अंडरस्टूड वाज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जस्ट फॉर लंग्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक्सरसाइज करते थे, ट्रेडमिल पे चलते थे, पूरी बॉडी एक्सरसाइज में होती थी, बट चेस्ट पर से की एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। और यही देखने को मिला कि लोगों के जो सैचुरेशन उस समय कम हो रहा था, उसका कारण सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, हमारी जो मांसपेशियां, बेसिकली हमारी दो मांसपेशियां हैं जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करती है। एक तो हमारी ये छाती की मांसपेशी है और एक हमारा डायफ्राम होता है जो हमारे लंग्स और हमारे पेट को सेपरेट करता है। हम लोग ये दोनों के इस्तेमाल से अपना सांस लेते हैं। हम ऑन एन एवरेज 10 से 12 ब्रीथ्स लेते हैं पर मिनट। एक ब्रीथ में हम अराउंड 500 ml हवा अंदर खींचते हैं और बाहर करते हैं। ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 लीटर एयर हम अंदर लेते हैं। हमें पता है कि हवा में 20% ऑक्सीजन होती है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1.25 लीटर हवा में तकरीबन 200 से 250 ml तक आपको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। और यही टाइम था जब पैंडेमिक में सबका ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा था कि हमारे मसल्स इतने वीक थे कि हम उन मसल से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए जो हम हवा ले रहे थे वो भी नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। आप सोचिए कि जिन लोगों को 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, नॉर्मली हमें 250 ml ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए हर मिनट, अदरवाइज 2 लीटर पे भी मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब था कि हमारे लंग्स के साथ साथ हमारी मसल्स भी वीक हो रही थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वी शुड टेक केयर इज at least for half an hour in 2 breaks, means 15 मिनट और 15 मिनट, जस्ट लंग्स की एक्सरसाइजेस हम सबको करनी है। और लंग्स की एक्सरसाइजेस करना बहुत सिंपल है। तरीका अगर किसी को नहीं आता तो वो ये होता है कि लंबी ब्रेथ लें, पूरी जितनी ले सकते हैं, और धीरे धीरे उसको पूरा छोड़े। इससे हमारे लंग्स के कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं जो कि नॉर्मल जब हम आराम से सांस ले रहे होते हैं तो वो फूलते नहीं है, वो एक्टिविटी में नहीं आते हैं। तो अगर रोज हम ये एक्सरसाइज करते हैं अराउंड हाफ एन आवर, हमारे लंग्स पूरी तरह से ठीक रहेंगे। दूसरा, उनके अंदर कोई भी जो भी स्पूटम, कोई भी कण रहेंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। जो लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। बट चेस्ट एक्सरसाइजेस, डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन,
इसमें एक कैविएट है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो लोग को कोविड हुआ था और उससे रिकवर कर रहे हैं, प्लीज वो इसको बहुत संभल के करें, बहुत ज्यादा जोर से ना करें, क्योंकि उनके लंग्स थोड़े से जिसे बोलते हैं कि वीक हो चुके हैं। सो किसी किसी के में हमने देखा है, जो पहले फोटो में देखा कि उसमें बुल्ले बने हुए, गुब्बारे जैसे बने हुए, अगर आप झटके से लेंगे तो हो सकता है उनमें से एक बुल्ला फट जाए और मुश्किल में आ जाए। तो आपको जो भी अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी है वो बहुत ही रिलैक्स्ड वे में करें, जोर ना लगाएं। मैंने देखा था कि एक उसमें वो बहुत तेजी से लेने की कोशिश कर रहे थे, वैसा ना करें अगर आपको रिसेंटली कोविड हुआ है तो। पहली चीज ये एक्सरसाइज, हम सबको पता है कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय हमें जरूरत है वो है हमारी जो मांसपेशी। खासकर ये पैंडेमिक टाइम में 1.5 साल से आपने देखा है, आपके भी जिसे बोलते हैं कि कोर्ट्स बंद रहे हैं, हमारा बाहर जाना कम हो चुका है, हमारी मसल बल्क कम हो चुका है। तो इस चीज के लिए जब तक हम अपनी एक्सरसाइज करके मसल बल्क नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे सांस लेने की मांसपेशियां भी नहीं बढ़ेंगी। जब हम कम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की डिपॉजिशन भी कम हो जाता है, और इस वजह से एक्सरसाइज डेफिनेटली जरूरी है। कुछ लोग कैल्शियम लेते हैं, लेकिन अगर कैल्शियम के साथ आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। और हड्डियां और मांसपेशियां, इट इज समथिंग लाइक गियर और एक्सीलेटर बॉक्स टाइप है, एक साथ काम करते हैं, टेंडम में काम करते हैं, तो इसकी बहुत जरूरत है। बहुत सारे हैं। और एक्सरसाइज का मतलब प्लीज ये ना समझे कि जॉगिंग करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज बिना रुके तेज कदमी से चलना, 15 मिनट से आधे घंटे का एक सेशन, और ऐसे अगर आप 2 सेशन कर पाते हैं, वेरी गुड। कोई जरूरी नहीं है जॉगिंग के लिए जाएं, शायद बहुत सारी जगहों पे जॉगिंग के ट्रैक ही नहीं होते। सो बेटर ये रहेगा ब्रिस्क वॉकिंग। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से चलना। और हमें ये देखना है कि इन दोनों चीजों से हमारी मांसपेशी ठीक होगी। हमारी बॉडी में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। हमारी बॉडी 3 चीजों से ही बनी है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, और हम उस बॉडी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का सबसे पहले चीज है जो कि हमें चेंज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर जिनका इंडोर काम है। यकीन मानिए ये मैंने स्लाइड आपके लिए डेफिनेटली ऐड की है, बिकॉज सारे के सारे व्हाइट कॉलर जॉब वाले ज्यादातर इंडोर काम कर रहे हैं। और जब इंडोर काम करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रेशन। हम एसीज में रहते हैं, हम हमारे जो क्या बोलते हैं कि हमें अपने पानी का अंदाजा नहीं रहता कि हम कितना पी रहे हैं, कितना नहीं पी रहे हैं। अपने पेशेंट्स को मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, 1-1 लीटर की 3 बॉटल पे अपना नाम लिख लीजिए, जो कंजम्पशन सिर्फ आप ही करेंगे, चाहे वो आप घर पे रहें चाहे बाहर रहें। 5-6 दिन ये करके देखिए, आपको आइडिया पड़ जाएगा कि हम अपने दिन में कितना पानी ले रहे हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर 1.5 से 2 लीटर पानी एटलीस्ट लेना चाहिए, और हर 1 घंटे जब वो कमरे के बाहर हैं उसमें आधा लीटर ऐड करना चाहिए। और इस हिसाब से मैं मानता हूं कि 2.5 से 3 लीटर पानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन लंग्स के लिए क्यों जरूरी है, ये बड़े तरीके से देखा गया कि जिन लोग पानी कम पी रहे थे, उनकी जो म्यूकोजा है, जो नाक की और जो लंग्स की म्यूकोजा थी, वो ड्राई थी। ड्राई म्यूकोजा में वायरस ज्यादा तेजी से पनपता है, और जब वो तेजी से पनपता है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा हैवॉक क्रिएट करता है। दूसरा ऑल्सो ये रहता है कि जब आपकी कोई भी म्यूकोजा सूखी रहती है, उसमें ब्लड सप्लाई कम रहेगी। ब्लड सप्लाई कम रहेगी तो आपके जो इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता के जो सेल्स हैं वो कम पहुंचेंगे, तो वो उसे किल कम कर पाएंगे। आपकी 2 त्वचा, जो अंदर की त्वचा है, वो हिल नहीं पाएंगे एक दूसरे पे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सो इसीलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी थी। आपको ध्यान होगा कि आप लोग सबने, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे ग्रुप्स में ये आया कि हमें स्टीम लेनी है।
देखिए स्टीम लेने से क्या हो रहा था, स्टीम लेने से जो आपकी म्यूकोजा ड्राई हो चुकी थी उसको वो डायरेक्ट इफेक्ट करके उसको हम हाइड्रेशन दे रहे थे। लेकिन वो हाइड्रेशन तो हमेशा नहीं कर सकते हम। आज 40 डिग्री की टेम्परेचर में अगर मैं स्टीम लूंगा तो मेरे लिए हो सकता है मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। सो बेस्ट थिंग इज कि हम अपने हाइड्रेशन को सबसे ज्यादा जरूरी रखें, खासकर ये नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जूस और उस पर रखें, नॉर्मल पानी इज फाइन। सो वो सारी चीजें ध्यान रखें। यूरिन, अगर आपको हर 2 घंटे में एक बार फुल तरीके से यूरिन आ रहा है और वो डार्क नहीं हो रहा है, दैट इज द बेस्ट मार्कर कि हमारा हाइड्रेशन बढ़िया है। सो दिस इज अबाउट हाइड्रेशन। दिस इज समथिंग जो कि हम हमेशा हमारे लंग्स, काश मैं इस बार मैं भूल गया, लेकिन अगली बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं ट्रांसप्लांट टोरंटो में करता था वहां के लंग और जब मैं सर्जरी यहाँ पे करता हूँ इंडिया में, तो यहाँ के लंग में क्या अंतर है। एक 25 से 30 साल के बंदे का जो लंग होता है ना, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट काला जैसा हो चुका होता है। और वहां पे आप एक 60 ईयर ओल्ड का भी लंग देखें तो वो पिंक होता है। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम अपने पोल्यूशन को चेंज शायद ना कर पाए, क्योंकि आप और मैं सड़क चेंज नहीं कर सकते, आप और मैं अपनी हवा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज कर सकते हैं, और वो ये है कि हम कितना वो धुआं, वो कितने पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं। शायद इस पेंडेमिक ने एक चीज, कोई पेंडेमिक अच्छा नहीं होता, लेकिन इसने कुछ आदतें हमारी ठीक की हैं, और एक आदत उसमें से ये है, हम मास्क पहनने की आदत हमें पड़ी है। बाहर जाए मास्क को ना उतारें, चाहे ये पेंडेमिक एंड भी हो जाए, आपका पोल्यूशन कहीं नहीं जा रहा। एक स्टडी के अनुसार पोल्यूशन, दिल्ली में रहता हूं तभी समझ सकता हूं कि पोल्यूशन के कारण एवरेज इंडियन की 5 साल तक लाइफ कम हो रही है, विच इज ह्यूज। वो किसी भी कैंसर, वो किसी भी हार्ट प्रॉब्लम से कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। लेकिन अपने आप को एक अच्छा मास्क पहने जब भी आप आउटडोर में जाएं। और जो भी यहाँ पे आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक चीज तो मुझे पता है कि हम सब इतना अफोर्ड कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए कि जो भी हो सके एटलीस्ट जिस जगह पे, जिस रूम में हम सो रहे हैं, जिस रूम में हम काम कर रहे हैं 6 से 8 हफ्ते, उसमें एक एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं। क्योंकि वही चीज है, आप बाहर मास्क पहन लेंगे, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब सर इसमें बैठ के, अपने चैम्बर में बैठ के 6-8 घंटे अपना काम कर रहे हैं, बैठ के सारे डाटास कर रहे हैं, वो टाइम बहुत जरूरी है। और उस समय जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको हम चेंज करें। और बहुत अच्छे फिल्टर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, और ऐसे भी हैं कि जो आपकी कमरे की ऑक्सीजन लेवल को नहीं कम कर रहे हैं। सो उन दोनों को मिला के कुछ ऐसा लें जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट को हम चेंज कर पाए। मैक्स हॉस्पिटल, मैं गंगाराम में 20-21 साल था। मैक्स हॉस्पिटल में आके मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, बिना कहे किसी के मैंने देखी, कि प्रैक्टिकली हर कॉरिडोर में डिफरेंट डिस्टेंस पे एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। और वो एयर प्यूरिफायर से सिर्फ एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, आपके पार्टिकुलेट मैटर को कम कर रहे हैं। खान पान वैसी बॉडी, हम सब अच्छा खाते हैं। आज मैं सिर्फ 3-4 स्लाइड दिखाऊंगा इसके बारे में। चाहता तो ये हूं कि आप ये देखें, और घर में जो भी इसके बारे में प्लानिंग करता है, चाहे वो आपकी मिसेस करती हैं, आपकी बहू करती हैं, आपकी बेटी करती हैं, उसको ये बताएं कि ये सारी चीजें आप खा रहे हैं, जस्ट इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दें कि आपके घर में एटलीस्ट एक डाइट में ये सारी चीजें दिन में एक बार जरूर आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार पेंडेमिक में शायद कोई ऐसी फैमिली बची होगी जिसके नियर और डियर वंस को कोविड ने नहीं जकड़ा होगा, और उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो कि जिंक और विटामिन सी की गोलियां सबको दी गई। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जिंक और विटामिन सी या और भी ऐसे वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पूरे खाने में
फॉर द एंटायर ऑफ अवर लाइफ आए, जिंक की टैबलेट आप रोज नहीं खा सकते, विटामिन सी की टैबलेट रोज खाने का कोई औचित्य नहीं बैठता, लेकिन अगर आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें आ जाएं और इस तरीके से आ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 चीजें ऐसी बता रहा हूं जिसके कारण आपके लंग्स जो खराब हो रखे हैं, जो डैमेज हुए हैं, उनमें भी बेटरमेंट होता है, पर्टिकुलरली स्मोकर लंग्स में। ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स इनको कहा जाता है। इसमें आइसोथायोसाइनेट होता है। ये जो होता है ये पर्टिकुलरली लंग के पार्टिकुलेट मैटर जो जम चुके होते हैं उनको क्लियर आउट करता है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये अगर इनमें से अगर आप देखें तो 2 दिन में एक बार आपके घर में वैसे भी बनती है, तो इनको इस तरह से करें कि जरूर खाई जाएं, पर्टिकुलरली सब्जियां जो कि इस समय वैसे भी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड के कारण कम हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट वेजिटेबल आई एम टेलिंग यू कि जो लंग्स को क्लियर आउट करने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरी ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, हमको सबको पता था कि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और वो आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बीटा कैरोटीन सिर्फ गाजर में नहीं होता है, कद्दू में भी बीटा कैरोटीन होता है, आपके जितने येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन होता है, आपके जितने भी रसदार लेमन वाले भी फ्रूट्स होते हैं उनमें भी बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन भी लंग्स को क्लियर आउट करने में काम में देता है, और इसलिए आपको अगर ध्यान दिया हो कि हम विटामिन सी की टैबलेट्स देते थे। विटामिन सी कोई जरूरी नहीं है सिर्फ नींबू में, ये सारे उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। ये अगेन इनके अंदर ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके लंग्स को क्लियर आउट करने में सहायता देते हैं। द बेस्ट पार्ट विद देम इज कि जैसे आप ब्रोकली कच्ची नहीं खा सकते, ये एक ऐसी चीज है जो कि आप कच्ची खा सकते हैं। हम सबके घरों में कद्दू बनता है। कद्दू के इतने तरीके हैं बनाने के कि वो अपने आप में एक बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये सारी जो चीजें हैं ये हमें किसी ना किसी तरह अपने दिन के या रात के किसी एक खाने में जरूर करना है। और मेरे हिसाब से तो इनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ऐसे ही कटवा के आप इनको एज ए सैलड खा सकते हैं। जब हम सैलड मानते हैं तो उसको टमाटर और प्याज और खीरे को अलग कर दीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसमें जो चीजें हैं वो ये है, संतरा कटवा के डालिए, गाजर कटवा के डालिए, कद्दू कटवा के डाल सकते हैं सौते करके। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लंग्स को बचाने में रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमें एंटी कैंसर भी होता है वो होता है विटामिन ई। जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन जब भी ब्रेकअप होता है उसको वो ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनाता है, जैसे ओजोन भी एक फ्री रेडिकल। सो वो जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके डीएनए को चेंज कर देते हैं, और उनके डीएनए को चेंज करके उनमें कैंसर जैसी चीजें भी बनाते हैं। और क्या होता है कि प्रॉब्लम, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब कोविड हुआ तो क्या हुआ, पहले हफ्ते में बुखार हुआ, दूसरे हफ्ते में सैचुरेशन गिरने लगी। और वो क्यों गिर रही थी? वो इसलिए गिर रही थी कि हमारी बॉडी ने लड़ना चाहा वायरस से और उसके बाद बहुत तेजी से अपना इन्फ्लेमेशन बढ़ाया। तब आपके डॉक्टर ने आप लोगों को स्टेरॉइड दिया कि कम करो। वो जो फाइटिंग पावर है, वो जो ऑक्सीजन को खत्म करने का, जिससे रेडिकल्स बनते हैं उनको खत्म करने का जो काम होता है, वो विटामिन ई के पास होता है हमारी बॉडी में, और इसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इवियन का कैप्सूल जो कि लेना होता है, लेकिन उससे अच्छा होता है कि अगर हम इसको डायरेक्टली इसको लें। अब विटामिन ई नॉन वेजिटेरियन फूड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन फूड्स में नहीं होता है। फिश में सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है, लेकिन अगर कोई आदमी वेजिटेरियन है तो उसके लिए फ्रेश फ्रूट्स और ऑलिव ऑयल, 2 ऐसी चीजें हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स
सब में विटामिन ई है, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंस क्या है कि इस विटामिन को भी विटामिन सी की तरह से गर्म नहीं करना है आपने। इसको आपको ये जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनको कच्चा खाने में विटामिन ई ज्यादा मिलता है। सो विटामिन ई एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे स्किन के लिए। स्किन और हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये जो कहने चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारी चीजें जो होनी चाहिए ये हमारे हर डाइट में थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में डेफिनेटली होनी चाहिए। सॉरी, सेलेनियम, जिंक के कैप्सूल हम सब खा रहे थे। सेलेनियम एक ऐसा एक और चीज है जो कि हमारी रिकवरी, हमारे लंग्स की, हमारे सेल की रिकवरी में काम करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद हम लोग ना खाते हों, लेकिन एक चीज जो हम सब खा सकते हैं और वो है बादाम। बादाम जैसी चीज में कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो अगर आप बादाम जैसी चीजें खा रहे हैं, हो सकता है किसी को मशरूम का टेस्ट पसंद ना हो, मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको बादाम ना खाते हो। तो ड्राई फ्रूट्स और बादाम में मिनिमल क्वांटिटी में भी हमें डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें मिल जाती है इन सारी ड्राई फ्रूट से, सेलेनियम, जिंक और कैल्शियम। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी। ये विटामिन सी एक ऐसा है कि आप जितना भी खाएं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन सी एक वाटर, पानी में सॉल्युबल विटामिन है। अगर आपने इसको ज्यादा मात्रा में भी ले लिया तो आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट रह के बाकी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो इसीलिए विटामिन सी को जरूर लें। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी हमेशा बेटर रहती है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी स्किन बेटर रहती है। और इसीलिए, और ये हम सबको पता है कि नींबू में और खट्टे फ्रूट्स में होता है, लेकिन ये कम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आंवला। गूसबेरी में प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, बाकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। लेकिन इसको ध्यान रखें और अपने हाँ जरूर बताएं कि जैसे ही आप खाने को गर्म करते हैं विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सो अगर आपको कभी भी कोई भी विटामिन सी वाली चीज लेनी है, या तो कच्ची लें, या अगर उसमें विटामिन सी को मेंटेन रखना है तो उसको बॉइलिंग या पूरी तरह से गर्म होने के बाद ही उसमें डालें, पहले ना डालें, नहीं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली। बीइंग इंडियंस, जो हमारे पास हमारे यूज में हमेशा आता था और वर्ल्ड ओवर कोई यूज नहीं करता था, was one thing, and that is turmeric. टर्मरिक में एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कुर्कुमिन। वर्ल्ड ओवर ये एक सिंगल कुर्कुमिन एक ऐसा सॉल्ट है जो कि प्रूव्ड है कैंसर को रोकने में। हमारी मदर्स ने हमारे घरों में जब भी चोट लगती थी हमें हल्दी का दूध पिलाया जाता था, बोला जाता था हल्दी फाँको, एक गिलास दूध पियो। कभी हमने सोचा नहीं कि वो क्यों था। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी था। वो जैसे ही हमारे बॉडी में चोट लगती है वो हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हल्दी का दूध दिया जाता था। इस पेंडेमिक में भी जब वायरस आता है तो वायरस से ज्यादा हमारी बॉडी जो इन्फ्लेमेशन कर रही थी, जो स्टेरॉइड से कम कर रहे थे हम, उसकी ज्यादा जरूरत थी। और इसमें हल्दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे बोलेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। हम सब हल्दी अच्छे से खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न डाइट चूंकि ज्यादा आ गई है किसी तरह हमारे खाने में, तो हल्दी का कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली कम हो चुका है। सो डेफिनेटली याद रखें कि हल्दी को किसी भी उसमें हमें अपने खाने में किसी भी तरीके से हल्दी का काम मतलब इनटेक जरूर होनी चाहिए किसी भी हालत में। एंड लास्टली, जो हमारे खाने के जो ऑयल्स हैं, जिस भी तरह के ऑयल होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बिकॉज ध्यान रखिए ऑयल्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट। हमारे घरों में ये सारी चीजें हो रही हैं,
लेकिन उनको बस ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। ये वाले ऑयल्स जो होते हैं, जैसे ही हम इनको बहुत रीहीट करते हैं या बहुत एक्सट्रीम हीट पे जाते हैं, ये खराब हो चुके होते हैं। दो ऐसे ऑयल हैं जो कि सबसे बढ़िया ऑयल्स हैं एज कंपेयर टू विटामिन ई के कंटेंट में। एक है सिंपल सरसों का तेल जो कि मस्टर्ड ऑयल, या दूसरा है ऑलिव ऑयल। ये दोनों ऑयल्स में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा काम देते हैं हमारे हेल्थ पर्पस को अगर हम माने तो। और बाकी देसी घी वगैरह जो भी है वो अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेमेशन ये दो घी से सबसे ज्यादा होता है। थोड़े से पार्ट्स में आपको वैक्सीनेशन के बारे में जो हमारे मिथ्स अभी चल रहे हैं उनके बारे में बता दूं। कोविड वैक्सीन बाकी वैक्सीन से, क्योंकि लंग्स के बारे में है इसलिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कोविड वैक्सीन जो है बाकी वैक्सीन से अलग है बिकॉज ये बहुत तेजी से डेवलप किया गया है, मल्टीपल वेज में डेवलप किया गया है और एक साथ सबको दिया जा रहा है। हमारे पास तकरीबन 3 या 5 तरीके के वैक्सीन आने वाले हैं, 3 हैं और 5 प्रैक्टिकली आ जाएंगे। 3 जो है वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक है। फाइजर और मॉडर्ना शायद आ जाएं। साइनोवैक जो है वो चाइनीज वे। ये सारे जो वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन हमारे जो आइदर वो डेड वायरस थे उनके ऊपर थे या जो वायरस के जो पार्ट थे उनको लेके जाने वाले थे। ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ समझिए। ये जो वैक्सीन थे, ये वैक्सीन वायरस के थे और है, तो ये आपके लंग्स को तो बचा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो ये नहीं बचा रहे हैं अभी वाले वैक्सीन, वो है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन मतलब कि वो अगर आपके में इम्यूनिटी डेवलप हो गई लेकिन एटलीस्ट वायरस आपके नाक में जाके रेप्लिकेट कर सकता है। वो वैक्सीन शायद देर में आएंगे जिनको हम इंट्रानेजल डालेंगे, नोज से डालेंगे, और वहां पे वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, वायरस अंदर जाके बैठ ही नहीं पाएगा और बढ़ नहीं पाएगा जब वो इंट्रानेजल वैक्सीन होगा। अभी ये वैक्सीन आपके लंग्स को खराब नहीं होने देंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का रीजन सिर्फ ये है कि अगर वैक्सीन लग भी गया है सो ये आपको इससे नहीं बचाएगा कि अगर वायरस का कोई दूसरा स्ट्रेन आ रहा है या वही वायरस आ रहा है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, माइल्ड होगा। तो इसीलिए मास्क को हटाना इस समय इस वाले वैक्सीन से खतरनाक है। इवन आफ्टर दिस वैक्सीनेशन मास्क पहनना है। हम इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रहे, उसके लिए अलग वैक्सीन आएगा तभी शायद रोक पाएंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे बाकी फोरम्स पे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वैक्सीन जो तीनों वैक्सीन आए पर्टिकुलरली जो हमारे लग रहे हैं, चाहे वो स्पुतनिक है, चाहे वो कोविशील्ड है, ये कोवैक्सीन है, ये तीनों के तीनों सेफ हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आई है फाइजर की, इट हैज नॉट शोन टिल नाउ कि उसमें कोई हार्म है। सेकेंड डोज के डिस्टेंसिंग चेंज होते रहे हैं बिकॉज ऑफ ICMR गाइडलाइंस, वो कम हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लॉजिस्टिक रीजंस के कारण शायद चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब पहला डोज लगता है वैक्सीन का तो वो आपके मेमोरी सेल्स को बनाता है, लेकिन जब दूसरा डोज लगता है तो वो मेमोरी सेल्स को 100% गारंटी करता है कि जब भी नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो कोशिश में बहुत सारे लोगों ने ये किया कि पहले कोविशील्ड लगवाया, फिर कोवैक्सीन लगा लिया, फिर कोवैक्सीन लगा लिया, फिर कोविशील्ड। उससे फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी वैक्सीनेशन करें वो एक सिंगल तरीके का वैक्सीनेशन करें, और वो है, क्योंकि चेंज ना करने पे कोई फायदा नहीं है। मल्टीपल वैक्सीनेशन अभी नहीं करना है। और जहां तक बात रहा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द बेस्ट वैक्सीन, ऑलमोस्ट सारी की सारी वैक्सीनेशंस का 60 to 80% एफिकेसी है। सो इसीलिए उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। द ओनली थिंग इज कि प्रेजेंटली कोविशील्ड से आप अगर नियर फ्यूचर में फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कोविशील्ड से अभी तक वो WHO रिकॉग्नाइज्ड है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोवैक्सीन फिलहाल अभी तक WHO रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, सो इंटरनेशनल ट्रैवल में थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस हैं। So that is the only thing. And medically
कोई ऐसे मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया हो वो वैक्सीनेशन ना कराए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इवन लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स कैन गो अहेड एंड गेट वैक्सीनेटेड। एंड आई थिंक कि मैंने आधा घंटा मुझे दिया गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। And I would say कि the only thing which matters in today's pandemic is good thoughts, stay positive, and hope that our health will pull out through this pandemic times. Thank you. किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पुट अप कर सकते हैं वन बाय वन। मेरा क्वेश्चन है भारत जी। बोलिए परमजीत जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे कोविड हुआ था सर, तो उसके शायद एक दिन पहले या लगभग एक मतलब या तो वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद कोविड हुआ या मैं पहले से इन्फेक्टेड था, जी तो सर। मुझे दूसरी वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? अच्छा सर, मैंने एक्चुअली उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा था। सर देखिए, ऐसा है कि जो अभी ICMR के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार 3 महीने तक वेट करना चाहिए आपको सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन लेने के लिए। इसका औचित्य यह है कि जो इनको इन्फेक्शन होता है, हम वैक्सीनेशन से भी आर्टिफिशियल इन्फेक्शन ही तो कर रहे हैं। हम डेड वायरस को आपकी बॉडी में ही तो डाल रहे हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उससे ये होता है कि आपको जो पहली डोज है वो तो आपको इन्फेक्शन भी दे रहा है। तो देयरफॉर आप आराम से वेट कर सकते हैं। अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव उस समय आया था या कोई भी टेस्ट आया था, तो वैसे एवरेज जो अभी तक के गाइडलाइंस है वो 3 महीने रुकने को बोल रहे थे। इनिशियली 14 दिन थे, फिर 28 दिन के, अभी 3 महीने तक। लेकिन आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। 2 से 3 महीने में लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं कोविड पोस्ट कोविड मुझे लंग फाइब्रोसिस था, तो वो अब मुझे सांस की दिक्कत तो काफी ठीक हो गई। आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 40 सेकेंड्स। दैट इज वेरी गुड। हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी खाता हूँ ना, जैसे चेस्ट पे जैसे कुछ भारी हैवीनेस सा महसूस होता है, बर्पिंग सी होती है। सर ये जो है ये सिम्टम बेसिकली रिफ्लक्स का आ रहा है सर आपको। जी, ये सिम्टम चेस्ट का ना होके रिफ्लक्स का है कि जब हम खाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है और बर्पिंग होती है, ये सारी जो चीजें होती है। बंद कर दो ये ट्यूबलाइट है। तो ऐसे समय पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए, इस फोरम पे मैं दवाइयां बताना शायद उतना सही नहीं होगा। सो व्हाट आई वुड एडवाइस यू इज सर कि आप नेक्स्ट फुर्सत में जब भी आप करा सकते हैं तो अपने पेट का एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। उसको कराने के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और आई कैन टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। बिकॉज इसका रीजन ये है कि हम हर चीज को, कभी कभी क्या होता है कि हम हर चीज को अपनी पुरानी बीमारी से रिलेट कर देते हैं। तो हम पहले ये रूल आउट कर लें कि आपको और कोई उसके साथ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली ये वाली जो बर्पिंग और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों को आई है, मैंने देखा है, वो ऑन एन एवरेज 6 वीक्स to 8 वीक्स में सेटल डाउन हो जा रही है। थैंक यू जी सर। ये सर पूछना चाह रहे हैं, सर का फोन इनका म्यूट है, हाथ उठा रहे हैं लेकिन म्यूट है। कौन है? हेलो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है सर ने। त्यागी मैं था विपिन। डॉक्टर साहब, मुझे ना एक क्वेश्चन ये पूछना था अभी। जैसा आपने सजेस्ट किया है कि एयर प्योरीफायर हमें अपने ऑफिसेज वगैरह में लगा लेना चाहिए, बट हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं इंडिया में भी, मेरठ में, कि जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आपने कहा मास्क लगाएं, बिल्कुल ठीक है, मास्क लगाएं, बट क्या उतने टाइम 7 से 8 घंटा या 5 घंटा हमें एयर प्योरीफायर में रहने के बाद हम बाहर जाएंगे तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे समाज कहता है? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सर इसका आंसर ये है कि सर देखिए, जिस समय से एक बच्चे की नाल काटी जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड डिवाइड की जाती है, और जिस समय तक उसके मुंह में जाता है, पीरियड के बीच में, इस पीरियड के बीच में उसको अपनी सांसें खुद लेनी है। और ये सांसें जितनी क्लियर होंगी सर, कोई जरूरी नहीं है कि
आप अपने 6 घंटे में क्या कर रहे हैं और 8 घंटे में क्या कर रहे हैं। बात यह है कि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं सर। देखिए, हम सब में से कभी ना कभी ऐसी जगह पे गए होंगे जहां पे यहाँ से कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन होगा, ठीक है सर। हम सब बोलते हैं कि भाई हम मनाली में जाके या वहां जाके हमें बड़ी अच्छी नींद भी आती है, हम बड़े आराम से रहते हैं, आंखें भी अच्छी फील करते हैं, भूख भी अच्छी लगने लगती है, पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। ये बड़ी कॉमन सी चीजें मैंने वहां देखी है। जबकि यहाँ पे हम पूरी तरह से काम करते हैं, वहां पे आराम करते हैं, तब भी भूख ज्यादा लगती है। आप कभी सोचिए ऐसा क्यों है? जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ही फ्यूल है, पेट्रोल है बाकी ऑर्गन्स के लिए, वो ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। बात यह है कि क्या अगर हम 24 घंटे अपने ठीक नहीं कर सकते तो हम कितना टाइम अपने आप को ठीक कर सकते हैं? एक चीज जो हम सब करते हैं वो है 6 से 8 घंटे सोते तो हैं। तो अगर एयर प्यूरिफायर, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि एयर प्यूरिफायर से आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपके कमरे का कम होता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सो अगर एयर प्यूरिफायर से पार्टिकुलेट मैटर हमारे सोते समय के भी कम हो रहे हैं ना सर, वो भी एक मेजर इम्प्रूवमेंट है। अगर हम दो जगह का काम चेंज कर दें, जहां पे हम बैठ के काम कर रहे हैं और जहां पे हम सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अगर हम उसको ही ठीक कर दें, तो आप ये सोचिए कि 2/3 टाइम तो आपने अपने सांसों को कंपैरेटिवली बेटर कर लिया। असल में सर मैं आपको इसमें नॉर्मली मेडिकल फोटोग्राफ नहीं डालता हूँ। अगर आप हम लोगों के लंग्स देखें इंक्लूडिंग मी, मैं श्योर हूं कि वो काले होंगे। और ये तब है जब कभी स्मोक नहीं किया है, कभी किसी स्मोकर के पास बैठता भी नहीं हो तब भी है। उसका रीजन ही ये है कि सर हमारे पार्टिकुलेट मैटर सिर्फ और सिर्फ जब नेशनल पैंडेमिक हुआ था, नेशनल लॉकडाउन हुआ था पिछले साल 3 हफ्तों के लिए, पहली बार तब हम ग्रीन जोन में कंप्लीटली आ गए थे पार्टिकुलेट मैटर। उसके बाद से हम कभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है सर, उसको क्लियर आउट करने का। और जहां तक बात रही सर कि हम जब हम बाहर जाएंगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है सर। अगर आपके लंग्स में मान लो 100 ग्राम सूट अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी क्लियर कर सकती है सिर्फ 20 ग्राम सूट। अगर हम उस 80 ग्राम सूट को अपने टाइम को एयर प्यूरिफायर्स और इसमें लेके रख सकते हैं तो बेटर होता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई सी भी गवर्नमेंट सर इसके ऊपर अपने चीजें नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस। सो बेसिकली राइट टू लाइफ में, एक्चुअली ये राइट टू लाइफ, आप तो सब लॉयर्स भी हैं, राइट टू लाइफ में वन ऑफ द राइट इज टू हैव अ राइट एनवायरनमेंट। सो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो आपको कोई नुकसान होगा। एंड मेरे को तो बड़ा वो लगता है कि एयर प्यूरिफायर्स, पहले आई वाज नॉट कन्विंस्ड और फिर हमने स्टडीज देखी और करी और फिर हमने लंग्स को देखा जो क्लियर्ड अप लंग्स थे और बिना क्लियर्ड अप लंग्स, देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशंस, देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन टू। श्री संजय मलिक जी शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर म्यूट पे है शायद उनका। श्री संजय मलिक जी, वो हाँ वो मेरा भी क्वेश्चन है भारत। एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री महेश त्यागी जी से, वो अपना क्वेश्चन पुट अप कर लें, हाथ उठा रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी सर, मैं पेशेंट हूँ, वर्टिगो में बीमारी है जी सर, चक्कर आते हैं मुझे, इन दिनों में भी आ रहे हैं सर। मुझे कोवैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है सर और उसकी दूसरी डोज मुझे लगनी है मंडे में सर। क्या इस पोजीशन में मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? सर आपको जो वर्टिगो आ रहे थे वो आपको पहले से आ रहे थे, पहली वाली वैक्सीन लगवाने के पहले ही आ रहे थे ना? जी सर। आपको इस वैक्सीन के लगने से पहले भी वर्टिगो की प्रॉब्लम थी ना? हाँ जी पहले भी थी। सर देखिए, चाहे वर्टिगो हो चाहे कोई भी और प्रॉब्लम हो, वैक्सीन जो है पर्टिकुलरली कोवैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है और वो बेसिकली डेड वायरस है।
So I would say कि you can go ahead and get vaccinated, आपको दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है सर। श्री नीरज जैन जी कुछ पूछना चाह रहे थे। हैं? श्री नीरज जैन जी। कि जो है जिंक का इस्तेमाल करें, जिंक का, जी जिंक सर। से तो वो सब ब्लैक फंगस बढ़ता है सर एक कहावत है सर, और वो ये है कि poison in a small amount is a drug and drug in large amount is a poison. अच्छा। So जब हम ये बोलते हैं कि जिंक से ब्लैक फंगस हो जाता है, सर जिस चीज के बारे में हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे वो ये था कि कोई भी जिंक एक बहुत ज्यादा एसेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी का, मोस्ट एसेंशियल। एक्चुअली हमारी बॉडी का नहीं, अगर आप जाके पढ़ें खासकर बॉटनी में, तो जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इवन। यू आर राइट सर। द प्रॉब्लम इज कि जब हम व्हाट्सएप के ऊपर जिंक की टैबलेट जो कि आराम से ओवर द काउंटर मिल रही है हमारे यहाँ, और हम उसको 50 दिन खा लेते हैं, तब हमें चाहिए वो बेसिकली लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर डे, और हम उसको ले रहे हैं 50 मिलीग्राम पर डे फॉर 50 डेज। तो सर वो तो पॉइजन हो गया ना। So it has to be taken in very minute amount, which, और ये आज का लेक्चर सिर्फ इसीलिए मैंने बोला कि अगर हम ये सारे खाने पीने को एडिक्वेट अमाउंट में करते हैं, आपको कभी भी जिंकोविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मकसद सर आपका मतलब ये है कि जिंक के 50 टैबलेट 50 दिन तक तो पॉइजन हो जाएगा। सर ये खराब है, खराब है, मगर खाने के अंदर खराब नहीं है, जो खाने के अंदर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या रीजन है सर। खाने के जब आपके किसी फ्रूट में या उसमें होता है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जिंक नहीं दी जाती है आपको, उसमें एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में जिंक होती है, और बॉडी इज सच ए ग्रेट मशीनरी ना दैट विल ओनली एब्जॉर्ब द अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ दैट। सो व्हेन वी टेक ह्यूज अमाउंट, अगर हम इतना बड़ा अमाउंट लेंगे तो दिक्कत होगी। राजीव जी सबके माइक म्यूट कर दें प्लीज। राजीव जी। आप सर आपने मुझे ये बताई कि बादाम नुकसान नहीं देता सर। मतलब बादाम जितने डायबिटिक पेशेंट वो भी बादाम ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकता है, बस उसमें ये देखना है कि बादाम भी ऐसे ना लें कि कितने ले रहे हैं उसके ऊपर चेक रखें। कितने बादाम ले लेंगे सर? सर ऑन एन एवरेज आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 5 बादाम से पूरा हो जाता है। अच्छा सर। पर पर्सन अराउंड अगर 60 to 70 kgs का वो है तो बेसिकली बादाम में क्या फायदा है? क्या टाइम दे सकते हैं डॉक्टर साहब? एक मिनट, क्या मैं समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? गंगाराम जी सर आप बीच में ना बोले, अभी वो पूछ रहे हैं नीरज जी। अच्छा, तो अराउंड सर 3 चीजों के बारे में, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है, हमारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा सोर्स होता है सर बादाम, और साथ साथ ऑयल और फैट का भी एक कंपैरेटिवली अच्छा सोर्स है। सो ऑन एन एवरेज कोई भी आदमी 4 to 5 अनटिल अनलेस वो एलर्जिक ना हो, बस इसमें एक यही होता है कि कुछ लोग नट्स को एलर्जिक होते हैं, उसको छोड़ के हर एक आदमी के लिए 4 से 5 बादाम इज गुड एनफ सर। सर उसमें एक बात और बताइए, जैसे अखरोट को कहते हैं अखरोट भी बड़ा फायदेमंद होता है। बिल्कुल सर, अखरोट बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अखरोट को छिलवाना किसी से फायदेमंद नहीं है। मतलब जो अखरोट जो गिरी होती है वो कह रहे 5 बादाम और 5 गिरी ले लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने की। मैं समझता हूँ नीरज जी आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नहीं मेरा कोई सॉल्व नहीं हुआ, मैं 5 अखरोट और 5 बादाम की गिरी लेने से वो इतने प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। सर ठीक है, मतलब अखरोट भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इट इज ऑलमोस्ट एट पार विद दिस। लेकिन क्या होता है कि अखरोट को मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि अखरोट को अगर आप ध्यान से देखें तो अखरोट बहुत जल्दी उसका जो फैट होता है वो रैंसिड हो जाता है, उसके अंदर महक आ जाती है, वो रैंसिड फैट बहुत जल्दी होता है एज कंपेयर टू बादाम। उसका रीजन होता है कि अखरोट को जैसी आप किसी भी नट को छीलते हैं उसका जो फैट होता है वो ऑयल एटमॉस्फेयर में आता है,
कोई अखरोट को पूरी तरीके से बिना तोड़े मिलने वाला अखरोट बहुत कम होता है, तो अगर हम लेते हैं तो उसके लिए मुश्किल होती है अगर वो प्रिजर्व्ड है। बादाम के साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए आई से कि बादाम इज इजियर देन दैट, अदरवाइज बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। बहुत ज्यादा गंगाराम सर का थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गंगाराम सर पूछिए। म्यूट कर ले सर। हेलो जी सर। गंगाराम सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन श्री संजय मलिक जी पूछ सकते हैं। अब चला रही है, सुनो, अब चला रही है मिक्सी, अब चला रही है मिक्सी। Sir, can I ask my question? I'm हाँ कौन? रेडमी राज। हाँ सर, I am Rajiv Agrawal speaking. जी बोलिए। Thanks for this session, sir. सर एक्चुअली मेरे को कोविड हुआ था और 19 मई को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। मेरे को रेमडेसिविर और ये पूरा स्टेरॉइड का कोर्स वगैरह दिया गया। अभी सर मेरा एक बार ये, एक तो आपने मुझे बताया कि 3 मंथ्स के बाद में ही वैक्सीन कराना है। मैं 42 इयर्स का हूँ और अभी तक मेरा कोई भी वैक्सीन हुआ नहीं है। मतलब पहला वैक्सीन 1 मई के बाद होना था, 27 अप्रैल को मेरे को कोविड हुआ था सर। तो सर ये सेकंड वैक्सीन मतलब मुझे जो 19 को मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ तो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद ही कराना है ना, फर्स्ट वैक्सीन जो है। ओके सर, दूसरा ये है एक्चुअली मेरा वर्किंग 10 आवर्स के करीब रहता है ऑफिस में और मतलब 2 घंटे हो जाते हैं ड्राइविंग के। तो जो मास्क सर, आप कौन सा मास्क रिकमेंड करेंगे? बिकॉज ऑफिस में भी मास्क मस्ट है और मैंने मास्क लगा ही रहा हूँ। तो विच मास्क यू विल रिकमेंड? जैसे मैं कोविड हो गया हूँ, मेरे लंग्स में भी थोड़ा सा मतलब अभी टाइम लगेगा। जी सर। तो सर देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मास्क देना, एक नया वाला मास्क देना। सो मैं आपको एक मास्क का वैरायटी भी दिखा देता हूँ। अभी 2-3 मास्क देना मेरे को, मैं तीनों मास्क की वैरायटी आपको दिखा देता हूँ। मास्क अगर 3 प्लाई मास्क जिसे हम बोलते हैं, 3 लेयर होती है सर। अगर वो 3 लेयर सर्जिकल मास्क, हाँ सर्जिकल मास्क अगर आप पहने तो दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट। लेकिन एक वो वाला भी देना। हाँ सर, ये N95 में पहन सकता हूँ क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? नहीं प्रॉब्लम होगी सर, ये N95 है। ओके ये N95 आप पहन सकते हैं। जस्ट आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, पहले अपने घर में बैठे और इसको पहन के देखें और फिर देखें कि आपका सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा है। बिकॉज जो हमारे अंदर रहते हैं और घर के अंदर, दूसरा मेरे को सिर्फ एक ही चीज से आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि अगर आप एक ही कमरे में 8 घंटे बैठे और उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर जो आपके पास है, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज गोइंग टू टिप। और ऐसे समय पे ऑक्सीमीटर में जो वैल्यू आती है सर, हाँ तो नहीं, जो आपके इन्वायरमेंट में, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ और अगर इसमें वेंटिलेशन कंप्लीट नहीं है और एक या 2 या 3 आदमी 8 घंटे इसी में बैठे हुए हैं, तो जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन ये कंप्लीट एयर में कंपैरेटिवली कम होती है। ओके, वो नॉर्मल आदमी के लिए, हाँ वो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल एयर में होता है वो 20% के ऊपर होता है थोड़ा सा। यस सर। नॉर्मल इंसान में आप नॉर्मल टाइम पे कभी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी आपके लंग्स थोड़े से वीक हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें कि अगर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और एनीथिंग अबव 94, 95 शुड बी गुड, और वो धीरे धीरे आपका बेटर होता चला जाएगा, वो ध्यान रखें। एक और ऐसा मास्क है, मैं ये देखता हूँ, एक ये मास्क है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यस सर। ये जो मास्क है, ये मास्क आपको बाद में भी बहुत अच्छा होगा। उसका रीजन है कि ये ना पोल्यूशन के लिए भी अच्छा मास्क है। ये PM 2.5 वाला मास्क है। अगर आप देखें इसमें लिखा हुआ है PM 2.5 वाला मास्क है असल में ये, और ये N95 PM 2.5 वाला मास्क है। अगर कोई भी PM 2.5 वाला मास्क होगा वो आपके लंग्स के अंदर पार्टिकुलेट मैटर को नहीं जाने देगा सर। जी सर, अंडरस्टैंड सर। किसी और का नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, मेरी तो बात नहीं करवाई सर। बोलो सर, बोलो गंगाराम सर, बोलो। हाँ डॉक्टर सर, एक और क्वेरी था मेरा जो ये लंग्स का जो ये है, मुझे कब तक टेक केयर करना है? जैसे या मैं कब तक छुट्टी लेके रहूं अपना घर में,
ऑफिस से, आप क्या सर अगर रिकमेंड आपका करेंगे? नहीं सर, अगर आपका सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है और आपका खाना पीना ठीक है तो आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। आपको 15 मई, आपने 15 अप्रैल कब बोला था? 15 मई 19 मई को मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ सर हॉस्पिटल से, आईसीयू में रहा हूँ 15 फिट दिन। एनफ। अब आप उस ये टाइम से निकल चुके हैं। आपको बस अपना हेल्थ, मतलब इन द सेंस कि आपको अपने खाने पीने में अगर ठीक है और आपका ऑक्सीजन सिचुएशन सर मेरे को पहले कोई ब्लड शुगर नहीं था, लेकिन अभी मेरा मॉर्निंग में जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है। ही रहेगा सर, 120 क्योंकि उसका रीजन है कि आपको हाँ। हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए होंगे। यस सर, वो यस धीरे सर, धीरे यस आप सर। जब अपना एक्सरसाइज वगैरह ठीक से चहलकदमी वगैरह करेंगे वो ठीक हो जाएगा सर, उसकी चिंता ना करें। गंगाराम सर पूछिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सर, मुझे टाइम मिल सकता है? अरे सर आप बोलिए, बोलो। बताइए सर, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ नमस्कार गंगाराम जी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं कोविड पॉजिटिव रहा और मेरा जो है अब दवाई वगैरह लेने से अब ठीक हो गया हूँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे फर्दर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, या लेना चाह रहे हैं सर? या फिर कोई मल्टीविटामिन होते हैं वो लेता रहूं या नहीं, या बंद कर दूं? सर देखिए, एक चीज तो यह है कि जो आपके कोविड की दवाइयाँ होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दवाइयाँ होती है, उनको तो चालू रखने की कोई रीजनिंग नहीं है। मल्टीविटामिन लेने में कोई बुराई नहीं है। एक सिंपल सा मल्टीविटामिन ले जो कंपैरेटिवली सबसे सस्ता हो, जिसमें सारे विटामिन हो, विटामिन ए बी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, और उसको उसको एज ए सप्लीमेंट रखे, बाकी तो खान पान में जाना है। एक सिंपल विटामिन अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो फायदेमंद ही रहेगा आपका। लेकिन उसको भी देखिए, मल्टीविटामिन थोड़े अमाउंट में काम करेगा, अगर उसको हम बहुत सारा भी ले लेंगे तो भी वो काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसलिए एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल दिन का लेना एक अच्छी चीज है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सर। संजय मलिक सर का शायद कोई क्वेश्चन रह गया था, आई थिंक वो पुट अप कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। वेट संजय मलिक सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैंने एक वो अपना हेल्पलाइन नंबर 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपका कभी कोई वो रहता है तो आप इस पे मैसेज भेज सकते हैं। वैसे भी मैं महीने में अब की बार जुलाई से मेरठ आऊँगा ही आऊँगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो आप इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, यू विल गेट एन आंसर। जी संजय मलिक सर। दिल्ली में अगर आपसे मिलना हो, दिल्ली या गुड़गांव में, तो कहाँ मिल सकते हैं सर? सर मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज और मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में रहता हूँ, और आपके पास मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, आप उस पे मैसेज करके या कॉल करके आप उस पे पहले बता सकते हैं। अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। संजय मलिक सर पूछिए। नहीं आ रही आवाज संजय मलिक सर? दिख नहीं रहे। आवाज नहीं आ रही है संजय मलिक सर आपकी। डॉक्टर ब्रिज मोहन अग्रवाल जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। और हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी पूछिए ब्रिज मोहन जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हापुड़ से ब्रिज मोहन अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। बोलिए मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, ये आपने एक पत्ता गोभी के बारे में बताया सर, तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सी बार ये देखा गया है कि इसमें कोई कीड़ा होता है, ये उबालने पर भी नहीं मरता। सर मैं आपको 3 तरीके, तो बड़े सिंपल तरीके बताता हूँ जिससे कि आप पत्ता गोभी खा सकते हैं और पत्ता गोभी के जो गुण हैं वो भी खत्म नहीं होंगे। सर ब्रोकली जो है, आजकल हर सब्जी वाले के पास ब्रोकली आराम से मिलती है। ब्रोकली को सबसे अच्छा तरीका जो वो ये है, उसको साफ कर ले, पानी से धो ले, उबलते हुए पानी में। सर वो पत्ता गोभी कह रहे हैं सर, ब्रोकली नहीं सर। सर मैं दोनों ही चीजें बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि पत्ता गोभी और ब्रोकली ये एक फैमिली के वो हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली ये एक ही जिसे बोलते हैं एक ही फैमिली के हैं। तो ब्रोकली को सबसे पहले इस्तेमाल करना सबसे आसान है सर, और वो ये है कि आप उसको धो के उबाल दें। उबालने में उसको ज्यादा देर तक नहीं उबालते, 4 से 5 मिनट उबालते हैं, ब्लांच हो जाती है,
और उसके बाद ये आपके ऊपर है, आप उसे कैसा खाना चाहते हैं सर। उस पे आप नमक, काली मिर्च, हल्का सा ऑयल और वो क्या बोलते हैं कि उसमें नींबू। मैं क्यों अपने बच्चों को खासकर इसको और अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, उसका रीजन ये रहता है सर कि आप जितना कम्बरसम करेंगे किसी भी डिश को, किसी भी फ्रूट को, किसी भी वेजिटेबल को, जितना कम्बरसम करेंगे वो उतना कम खाई जाएगी आपके घरों में। खाने में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के सिर्फ 2 फंडामेंटल पॉइंट हैं। एक, वो इतना कम्बरसम ना हो कि आपकी वाइफ आपको बोल दें कि भैया तुम खुद ही पका लो, मैं ना दे रही। और दूसरा, उसमें टेस्ट मेंटेन होना चाहिए। वो टेस्ट में अगर अच्छा होगा तो हर बार खाया जाएगा, नहीं तो 2 बार के बाद। आंवला सबसे अच्छी चीज है, लेकिन शायद हम 40 लोगों में से 2 दिन के बाद कोई आंवला खाए ना कच्चा। तो ब्रोकली को इस तरीके से खाया जा सकता है। पत्ता गोभी को, यस, पत्ता गोभी और फूल गोभी को ये हमने माना है कि पिछले समय में बहुत लोगों ने बोला इसमें कीड़ा होता है, दिमाग में जाता है और ये जाता है, तो अपने दिमाग में उस चीज को हटा दें। किसी भी वेजिटेबल्स को अच्छे से धोए। अगर आपको 2 मिनट भी ये लगता है कि इससे हो सकता है, ये तीनों वेजिटेबल ऐसी हैं कि जिनको अगर आप सिर्फ 4 से 5 मिनट भी खौलते हुए पानी में उबाल देते हैं, इनके न्यूट्रिशन खत्म नहीं होंगे और आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। सब्जी तो हम सबको पता ही है कि गोभी की कैसे बनती है, लेकिन इनको सिर्फ उबाल के आप इनके सैलेड में एज ए सैलेड खा सकते हैं या बेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास बेकिंग ट्रे है तो उसको ऐसे रख के उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के बेक कर सकता है एंड वो हेल्दी भी होता है। जी विपुल जी, आपका क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि जैसे इस बार कहा गया था कि 2 मास्क लगाने चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम जैसे सबसे पहले 3 लेयर मास्क लगाते हैं और उसके ऊपर N95 लगा लेते हैं। तो मैंने एक चीज महसूस करी कि यदि हमने बहुत लंबे समय तक हमें 2-3 घंटे 4 घंटे लगाना पड़ गया, तो बीच में थोड़ी बहुत देर बाद मैंने कई बार महसूस किया कि 2-4 मिनट में सफोकेशन की प्रॉब्लम सी होती है, उसके बाद फिर अपने आप सही हो जाती है। एक तो ये चीज थी कि क्या हमें वास्तव में 2 मास्क लगाएं या अब 1 मास्क करें। मैं पहले इसका आंसर दे देता हूँ सर। सर देखिए, ये बड़ा क्लियर था कि किसी ने बोला कि 3 मास्क। अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक ने एक चीज और हमें समझा दी, और ये था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हर चीज पे बोलना चाह रहे थे और उसके रिपरकशंस कैसे होते हैं वो नहीं देखना चाह रहे थे। सर ये जो 3 प्लाई मास्क है ना, ये ऐसा मास्क है कि अगर मैं इसको पहन लूं तो मैं 1 घंटे के बाद खुद को अपने आप को सफोकेशन महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ ऑपरेशन के टाइम पे इसको मेरे को जबरदस्ती पहनना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि इसका बेसिक फंडामेंटल है कि ये आपको इतनी तेजी से कवर करके रखेगा कि कोई भी चीज अंदर नहीं जा पाएगी आसपास से। अब इसके ऊपर 3 प्लाई मास्क के ऊपर आपने ऊपर से वो पहन लिया, एक और मास्क पहन लिया N95। जानते हैं ऑक्सीजन के लेवल कम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या हुई, आपके मसल्स को सेम सांस लेने के लिए डबल एफर्ट मारने पड़े। अब 1 घंटे तक तो आपने अपनी मसल्स को, सब यंग लोग हैं वो कर लिया, 1 घंटे के बाद वो फटीग में आ गई। अगर आप 1 घंटे तक इस हाथ को ऐसे ऐसे करते रहे तो फटीग आ जाएगी। वही हमारे छाती के साथ हुआ। सर जो फंडामेंटल रीजन था कि 2 प्लाई मास्क पहना जाएगा, ये नहीं था कि हमारे 2 पहनने से कोरोना अंदर नहीं जाएगा। उसका ये था कि ये महंगा मास्क है, अगर आपने इसको एक बार पहन लिया और बाहर इससे कुछ लग गया तो ये खराब हो जाता है। तो अंदर ये अच्छा मास्क पहने, इसके ऊपर से आप एक सिंपल कपड़े का मास्क जो कि रेडीमेड बार बार धोया जा सके उसको यूज कर लें। तो फंडामेंटल रीजन था 2 मास्क पहनने का, ये था। 2 कपड़ों के मास्क पहनने से भी कोई फायदा नहीं है, 2 ऐसे वाले मास्क पहनने से भी कोई फायदा नहीं है, वो ज्यादा नुकसान है। एक सिंपल ये मास्क पहन के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था। सर ये हम सब जानते हैं कि ये एक अच्छा वाला मास्क जो है वो 30 से लेके 45 रुपए तक का है। अब अगर 4 लोग की फैमिली है तो मास्क आप कितने पैसे खर्च करेंगे जब रोज आपको अगर चेंज करना है। तो उसको ना करने के बजाय इसके बाहर आप जब जाते हैं तो इसके ऊपर एक कपड़े का सिंपल मास्क लगा सकते हैं, या जो सिंपल मास्क आता है वो लगा सकते हैं, जिससे कि ये गंदा ना हो।
और उसको वो चूंकि बहुत सस्ता होता है, 1 रुपए का भी नहीं होता, उसको आप फेंक दें, नेक्स्ट डे नेक्स्ट लगा लें। मतलब N95 के ऊपर डॉक्टर साहब ये मास्क लगाएं? ना, ये तो N95 एक ही मास्क यूज करना है। हाँ। उसके अगर आपको डबल मास्क, सर 2 तरीके हैं। मैं रोज नया मास्क पहनता हूँ, तो मेरे को डबल मास्क की जरूरत नहीं है। मैं इसको पहन के शाम तक खराब हो जाता है, मैं फेंक देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको, चूंकि आपका उतना इन्वायरमेंट नहीं है वायरस वाला, तो आपको रोज चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको डबल ना करें। इसके ऊपर N95 के ऊपर N95 है, उसके ऊपर 1 प्लाई मास्क, 3 प्लाई मास्क ना पहनने की जरूरत नहीं है। एक N95 के ऊपर एक सिंपल कोई सा भी मास्क, अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे हैं डेली, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और मैं अगर आपको बताऊं, सबसे अच्छा तरीका जो है, N95 का एक मास्क को लें, एक दिन पहने, उसको ऐसे ही किसी धूप वाली जगह पे टांग दें। 8 घंटे की धूप से वो वैसे ही स्टरलाइज हो जाएगा। उसके अगले दिन आप फिर से उसको पहन सकते हैं। तो आपको डबल मास्क की भी ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत है। सर ये N95 कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? सर नॉर्मली हाँ, कहते हैं कि जब तक, मतलब इसका सीलिंग मैकेनिज्म, सर ये खराब नहीं होता, सीलिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है। ये लोहे का जो वो पार्ट है, ये ढीला हो जाता है, रबर्स ढीली हो जाती हैं, तो वो खराब होता है। अदरवाइज मतलब मैंने तो वॉशेबल भी होता है, सो तो वॉश भी कर सकते हैं N95 को। विपुल सेकंड क्वेश्चन। विपुल हाँ, डॉक्टर मेरा सेकंड वॉशेबल नहीं होता है ना? कुछ होते हैं सर, वॉशेबल नहीं होते। अच्छा। अरे 1 by 1। विपुल सेकंड क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे आपने बादाम के लिए कहा था, एक 70-75 साल के व्यक्ति को 5 बादाम खाने चाहिए डेली। नहीं खाने नहीं चाहिए, खा सकते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जैसे मेरी चीज ये थी कि जैसे मैंने न्यूज में ये भी देखा था, तो वो ये बता रहे थे कि आप रात को 5-6 बादाम भिगो दीजिए और उसी के साथ आप अखरोट भी भिगो दीजिए, जैसे अभी आप कह रहे थे। तो सुबह छिलवा के अपना 5-6 बादाम और 1-2 अखरोट अपना खा लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है या मतलब कोई और तरीके से? सर देखिए आप लोग बस एक चीज और लास्ट, वो ये और कह रहा हूँ कि इसके अलावा जैसे हम लोगों की पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, आप लोगों की भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? कुछ नहीं सर, आप मैं अब आपको बताता हूँ। मैं कोविड आईसीयू में जाता हूँ, कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं हम लोग। एक ही चीज बचाती है, ज्यादा 2 चीज बचा रही है हम लोगों को, जिसको भी बचा रही है। एक तो चीज कॉमन है और वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी खाने पीने, स्वस्थ रहने से और प्रभु का नाम लेने से अगर अच्छी है, तो वो बचाएगी। और दूसरा है एक अच्छा मास्क। अगर ये दोनों चीजें हैं, सब प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो सबसे पहले मास्क पहन के रखते हैं जब तक मेरे कमरे में आया। अच्छा भैया ये तो अपना दोस्त है, मास्क उठा के बाहर और बातचीत शुरू। और यही आपके यहाँ भी हो रहा होगा, मैं यकीन बता रहा हूँ। सबके यही होता है। तो जब तक बाहर रोड पे हैं तब तक मास्क पहने हुए, जैसे ही कमरे में आए, हाँ भाई त्यागी जी कैसा है, और मास्क बाहर। अब बता दूं उस मास्क का फायदा क्या रहा। सो इम्पोर्टेंट चीज है कि मास्क तब जरूर पहने। आप अकेले छत पे घूम रहे हो, वो उसमें मास्क पहनने की क्या जरूरत है? अगर आप अकेले पार्क में घूम रहे हैं और कोई नहीं है, तो अपने पास मास्क रखने की सही में कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आपके पास में 5-6 मीटर के अंदर में कोई दायरे में कोई बंदा है जो आपका फैमिली मेंबर पूरे टाइम नहीं है, तब मास्क पहनना तो बनता है ना सर। प्रभात कुमार गुप्ता जी। सर तो सर ये पूछना था, ये कोविड हुआ था मुझे और कोविड से ठीक भी हो गया। अब मुझे बुखार बना रहता है शाम को, रोज 99.2 99.5 इस तरह का बुखार हो जाता है, और एक सैचुरेशन लेवल 94 से ऊपर नहीं जा रहा है। ये 2 चीज के बारे में सर आपको 2 चीजें करनी है। पहले तो आप ये जो 99.2 और 99.4 का बुखार है, वो बेसिकली बुखार से ज्यादा आपके बॉडी का रिकवरी प्रोसेस है। कि जो आपकी रिकवरी होती है, तो बॉडी, आप सोचिए कि अगर एक कार को आप 40 पे चला रहे हैं और 60 पे चला रहे हैं, दोनों के टेम्परेचर में अंतर आता है। अब चूंकि आप रिकवर कर रहे हैं, तो बॉडी तेजी से चल रही है एज कम्पेयर टू पहले, तो आपका थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रह सकता है, जिसकी आप चिंता ना करें, ना दवाई खाएं ना कुछ खाएं। तो पहला आंसर तो ये, चिंता मुक्त रहें।
दूसरा है आपके जो सैचुरेशन है वो 94-95 है। मुझे आपके एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के कारण लंग्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। ऐसे समय में सर आपके लिए सिर्फ एक तरीके से जरूरत है, बिना एक्सर्ट किए अपने लंग्स की एक्सरसाइजेस जरूर शुरू करें। और अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, अगर प्राणायाम या योगा कोई दिक्कत है करने में, तो मेरे हिसाब से सिंपल एक्सरसाइज है कि पानी के गिलास में एक रीजनेबली थिक स्ट्रॉ लेके उसमें फूक करते रहे, लंबा सांस ले, उसमें बुलबुले डाले, फिर लंबा सांस ले, फिर बुलबुले डाले, और इसको अपना आराम से बैठ के टीवी देखते समय या किसी भी टाइम पे जिस समय आप रिलैक्स हो वो करें। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अपने लंग के जो एक्सिस्टिंग पोर्शन है जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सैचुरेशन अपने आप बिना ऑक्सीजन लिए ही ठीक होने लगेगी। मैं समझता हूँ शायद सभी के क्वेश्चन सब पूरे हो गए होंगे। त्यागी जी एक क्वेरी और मुझे करनी है। जिसके रह गए हैं वो हेल्पलाइन नंबर पे डाल सकते हैं, सर ने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए राजीव गुप्ता जी से कि वो सर के लिए वोट ऑफ थैंक्स कहें। ओवर टू श्री राजीव गुप्ता जी। थैंक यू भारत जी। आज का जो सेशन जो हमारे डॉक्टर प्रमोद जिंदल जी ने लिया, मैं समझता हूँ कि सभी तरीके की जो सवाल थे वो सर के प्रेजेंटेशन में इनबिल्ट थे। खासतौर से सर ने इन बातों को कहा कि भाई पानी को हमें पीना चाहिए। तो मैं देख रहा था हमारे सेक्रेटरी साहब भारत जी उसी समय पानी की घूंट भी ले रहे थे तो उन्होंने इमीडिएट इस पे अमल किया, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में, प्रमोद जी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। खासतौर से स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए, खैर मैं तो करता ही नहीं हूँ, अगर बाकी कोई कर रहा है तो उनको भी आपने सावधानी बरतने के लिए कहा। और इसके अलावा जो लंग्स के लिए जरूरी चीजें है, खासतौर से हमारे डेली रूटीन खान पान में, तो वो सिंपल तरीके से आपने बताया। मैं उम्मीद करूंगा सभी मेंबर्स को इसका फायदा मिलेगा। और अगर फिर भी हमारे कोई सवाल या क्वेरीज है तो सर ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ 9818631317। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं कोई आपको लगे तो आप इस नंबर का जरूर फायदा लें। और इसी के साथ मैं ब्रांच अपने ITBA मेरठ की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी हमारे व्यूअर जो भी जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक, उन सबका फिर से एक बार धन्यवाद। ओवर टू भारत जी। भारत त्यागी जी। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी की मीटिंग को क्लोज करें, और धन्यवाद सर का, डॉक्टर साहब का। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका, धन्यवाद आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते।